Good morning students, this is Anil Kumar Soni and in the last class we discussed trigonometric functions and their properties and formulas. Today I am going to start inverse trigonometric function. What is the inverse trigonometric function? तो इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था sin theta equals to x. If sin theta equals to x, where sin theta is the trigonometric function and theta is the domain. Theta is the domain and domain represent any angle, and x is the range and range represent any constant value, a constant number. Okay, if sin theta equals to x, where theta is the domain and theta represents any angle, and after putting the value of theta then we get the value of x, then x is the range and range represent any constant number. अब मैं इसका इनवर्स ले लिया जाए, then we want to find the value of theta, then value of theta equals to sin inverse x, then theta equals to sin inverse x. This is the inverse trigonometric function where x is the domain, where x is the domain of inverse trigonometric function and where theta is the domain of the trigonometric function. तो आपको पता है कि trigonometric function को जैसे ही inverse trigonometric फंक्शन में चेंज करेंगे, डोमेन एंड रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएगा. जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा. If sin theta equals to x, then the value of theta, if we want to value of theta angle, then theta equals to sin inverse x, where x is the domain of the inverse trigonometric function or x is the domain of the sin inverse, then x is domain and domain represent any constant number, and theta is the range and range represent any angle. ओके, मींस थीटा को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और थीटा को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला जो एक्सप्रेशन होता है वही अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है. मींस थीटा can be expressed as the terms of x by using the expression sin inverse. Then sin inverse is the inverse trigonometric function. Okay, term sin inverse expressed theta is in the form of x. Okay, term sin inverse expressed theta is in the form of x, means जो sin inverse अपना एक्सप्रेशन है वो थीटा को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है. term sin inverse expressed theta is in the form of x, then sin inverse is the inverse trigonometric function. And other trigonometric functions are cos inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse and cosec inverse. Okay, I will repeat. If sin theta equals to x, where sin theta is the trigonometric function where theta is the domain and domain represents any angle. After putting the value of theta, then we get the value of x. X is the range and range represent any constant number. But we want to value of theta. Then for finding the value of theta, then theta equals to sin inverse x, where x is the domain of inverse trigonometric function, where x is the domain of sin inverse, then x is the domain and domain represent any constant number, and the theta is the range and range represent any angle. Means sin inverse है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है x की फॉर्म में,
ठीक है। द टर्म साइन इनवर्स एक्सप्रेस द थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ x, सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो थीटा को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, एंगल को किसी कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला जो एक्सप्रेशन होता है वही अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। देन दिस इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स एंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स। ओके, क्लियर। अब देखिए, इससे लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो आपको इतना तो पता लगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो उसका डोमेन बन जाएगी। मींस जो डोमेन और रेंज वाली टेबल थी उसको मुझे चेंज करना है, डोमेन को रेंज में कन्वर्ट करना है और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो एक बार देखते हैं। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था साइन थीटा, साइन थीटा का डोमेन और इधर रेंज। ओके, डोमेन क्या था, रियल नंबर एंड रेंज था -1 to 1 इन लार्ज ब्रैकेट मींस क्लोज इंटरवल। cos थीटा का डोमेन r, इसका रेंज -1 to 1। tan थीटा का डोमेन क्या था, r माइनस बट थीटा की वैल्यू 2n + 1 π/2 नहीं होनी चाहिए थी और इसकी रेंज थी r। cot थीटा का r माइनस थीटा इक्वल्स टू n π where n belongs to z and r। sec थीटा का r माइनस थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 and r minus -1 to 1। and cosec theta r minus theta equals to n pi and r minus -1 to 1। This is the domain and range of the trigonometric function, but today we find the domain and range of the inverse trigonometric function। तो inverse trigonometric function का मुझे domain and range फाइंड करना है। तो फर्स्टली आपको ये बात समझनी है कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल कब बोला जा सकता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब फाइंड किया जा सकता है। देन दिस फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मींस किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए दो कंडीशन होती है। फर्स्टली वो फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए और सेकेंडली वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाएगा कि अपना फंक्शन बाइजेक्शन होना चाहिए। तो 1 to 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है वो मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में बताऊंगा। यहाँ केवल इतना ध्यान रखना कि फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। लेकिन अभी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 to 1 नहीं है, क्योंकि दिमाग लेके चलते हैं कि sin थीटा का डोमेन r है और रेंज -1 to 1 है। जो इसका आंसर आएगा वो -1 या -1 से ग्रेटर होगा, +1 या +1 से स्मॉलर होगा। बट दिस फंक्शन इज मैनी टू 1 और मैनी टू 1 फंक्शन है तो हम इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है तो फंक्शन को मैनी टू 1 से पहले मुझे 1 to 1 फंक्शन बनाना होगा। क्योंकि मैनी टू 1 कैसे है, क्योंकि देखिए रियल नंबर में 0 आता है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। sin 0 की वैल्यू 0 एंड रियल नंबर में मैं लूं पाई तो sin पाई की वैल्यू भी 0। देन दिस फंक्शन इज मैनी टू 1 फंक्शन। तो मैनी टू 1 फंक्शन का मैं इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। देन दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। तो फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन को फर्स्टली हम 1 to 1 बनाएंगे। 1 to 1 बनाने के लिए इसके डोमेन को हमें इंटरवल में चेंज करना होगा। इसके डोमेन को इस तरह के इंटरवल में चेंज करना होगा कि थीटा की डिफरेंट वैल्यू पर मुझे x की भी डिफरेंट वैल्यू ही मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है। इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें इस फंक्शन को 1 to 1 बनाना होगा और 1 to 1 बनाने के लिए इसके डोमेन को मुझे चेंज करना होगा और डोमेन को इस तरह इंटरवल में चेंज करना होगा कि उसकी डिफरेंट वैल्यू पर, थीटा की डिफरेंट वैल्यू पर मुझे रेंज में भी डिफरेंट आंसर मिले, डिफरेंट x की वैल्यू मिले। देन दिस फंक्शन इज चेंज इनटू द 1 to 1 फंक्शन। तो उसके लिए जो ये इंटरवल डिवाइड किया गया है वो इंटरवल है
माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और जो ये है वो रियल नंबर में से ही है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, और इसके बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे वो सभी रियल ही है। बट इस इंटरवल में डिवाइड करने पर अब अपना ये साइन थीटा 1:1 फंक्शन बन गया है, और 1:1 होने के बाद मैं इसका इनवर्स भी फाइंड कर सकता हूँ। सिमिलरली cos थीटा का डोमेन मुझे 0 to पाई, ओके, tan थीटा का डोमेन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इन ओपन इंटरवल, cot थीटा का डोमेन 0 to पाई इस ओपन इंटरवल, sec थीटा का डोमेन 0 to पाई क्लोज इंटरवल, बट रेजिस्टेंस होने के लिए इसमें पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है। एंड द cosec थीटा का डोमेन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, बट इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। ओके, तो इस फंक्शन का इन्वर्टिबल बनाने के लिए, किसी भी एनीथिंग फंक्शन किसी को भी इन्वर्टिबल बनाने के लिए, इनवर्स फाइंड होने के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए, इन्वर्टिबल होने के लिए दैट फंक्शन वुड बी 1:1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1:1 का मींस होता है कि थीटा की डिफरेंट वैल्यू पे मुझे x की भी डिफरेंट वैल्यू की मिलनी चाहिए। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था sin 0 की वैल्यू 0, sin पाई की वैल्यू 0, तो ये 0 और पाई दोनों डिफरेंट है, बट डिफरेंट में जो आंसर आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है, देन दिस इज द मैनी टू वन फंक्शन। ओके, तो 1:1 फंक्शन बनाने के लिए इसके डोमेन को इस तरह इंटरवल में डिवाइड करना होगा, देन दिस इज द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जैसे इसका इन्वर्स करेंगे तो आपको पता है कि जो डोमेन है वो रेंज में चेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन में चेंज हो जाएगा। मींस जो ये रेंज है ये सब अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन बन जाएंगे, और जो डोमेन है वो उसकी रेंज बन जाएगी। ओके, तो देखिए डोमेन एंड रेंज, रेंज में भी प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। अब देखिए इस डोमेन को मैं रेंज लिखता हूँ, इस रेंज को मैं डोमेन लिख देता हूँ, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। ये तो हो गया डोमेन और ये रेंज। रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, 0 to पाई माइनस पाई बाई टू इस ओपन इंटरवल, 0 to पाई ओपन इंटरवल, 0 to पाई क्लोज इंटरवल, बट पाई बाई टू इसमें इंक्लूड नहीं है, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, बट 0 इंक्लूड नहीं है। दिस इज द रेंज, डोमेन है वो रेंज में चेंज हो गया है। तो ये अपना बन गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। तो इसको आपको नोट करना है। और रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, क्योंकि इसको एक इंटरवल में डिवाइड कर दिया गया है जहां अपना फंक्शन 1:1 एंड ऑन टू बनेगा। 1:1 एंड ऑन टू बनने के बाद ही वो फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें इसकी रेंज को आपको लर्न करना है कि sin इनवर्स x की रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इन क्लोज इंटरवल, cos इनवर्स x की रेंज 0 to पाई इन क्लोज इंटरवल, tan इनवर्स x की रेंज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये दोनों
जो लास्ट पॉइंट होते हैं वो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होते हैं। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज 0 to पाई, ओपन इंटरवल, सेक इनवर्स एक्स की रेंज 0 to पाई, क्लोज इंटरवल, बट पाई बाय 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल एंड द रेंज ऑफ cosec इनवर्स एक्स इज minus pi by 2 to plus pi by 2 in closed interval, but 0 is not included. Okay, noted. The next topic is properties of inverse trigonometric function, where first properties is sin inverse sin theta equals to theta, where theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Okay, where theta is the range of sin inverse. Okay, where theta is the domain of trigonometric function, but theta is the range of इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन का इनवर्स कौन है, साइन इनवर्स, और किसी के साथ जब उसका इनवर्स आता है तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। साइन से साइन इनवर्स वाला इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे मैंने बोला 4 का रूट 2 होगा और मैं इसी का स्क्वायर कर दूं, देन रूट एंड स्क्वायर आर द इनवर्स प्रोसेस। 4 का मैं रूट भी ले रहा हूँ, उसी का मैं स्क्वायर भी कर रहा हूँ, तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट का इफेक्ट कट हो जाएगा, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 4। इसी तरह ए इनवर्स, ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है, किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, देन वी गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो किसी के साथ भी उसका इनवर्स आता है तो वो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। देन साइन से साइन इनवर्स इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड वेयर थीटा इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एंड द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन थीटा इज minus pi by 2 to plus pi by 2. Similarly, cos inverse cos theta equals to theta, where theta belongs to 0 to pi. Okay, tan inverse tan theta equals to theta, where theta belongs to minus open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ओके, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल्स टू थीटा, sec इनवर्स sec थीटा इक्वल्स टू थीटा, cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल्स टू थीटा, where theta belongs to 0 to pi in open interval, where theta belongs to 0 to pi minus pi by 2, where theta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, not included 0 in this interval. Okay, this is the property first. The property second is sin inverse minus x equals to minus sin inverse x, cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x, tan inverse minus x equals to minus tan inverse x, cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x, sec inverse minus x equals to pi minus sec inverse x, and cosec inverse minus x equals to माइनस cosec इनवर्स x। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, sin इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x एंड cosec इनवर्स माइनस x, ये तीनों किसके इक्वल है, इनका माइनस ब्रैकेट से बाहर आ रहा है, देन माइनस sin इनवर्स x, sin इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस sin इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x, cosec इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस cosec इनवर्स x। जबकि cos इनवर्स माइनस x में माइनस बाहर आ रहा है, बट वो पाई में से माइनस हो रहा है, देन पाई माइनस cos इनवर्स x,
cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स x एंड cos sec इनवर्स माइनस x पाई माइनस sec इनवर्स x। तो cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स में से ही ये पाई में से माइनस क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन ये है cos इनवर्स cot इनवर्स एंड sec इनवर्स, क्योंकि इन तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो 0 से पाई तक जाती है, तो अपना आंसर 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए, तभी फंक्शन के इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा, फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होगा। ओके, तो इन तीनों का जो आंसर आना चाहिए वो 0 to पाई के बिटवीन ही आना चाहिए, cos इनवर्स का, cot इनवर्स का एंड sec इनवर्स का। इसलिए आंसर 0 to पाई के बिटवीन लाने के लिए इसमें इनको पाई में से माइनस किया गया है, पाई माइनस cos इनवर्स, पाई माइनस cot इनवर्स, पाई माइनस sec इनवर्स। तो आपको इस तरह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिसके भी रेंज में 0 to पाई आ रहा है उसका नेगेटिव आगे आके पाई में से माइनस होगा। cos इनवर्स माइनस x 0 to पाई देन पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x cot का 0 to पाई देन पाई माइनस cot इनवर्स x एंड sec इनवर्स माइनस x 0 to पाई देन पाई माइनस sec इनवर्स x एंड माइनस sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स एंड माइनस cos sec इनवर्स x। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आंसर आ सकता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एंड माइनस पाई 2 से प्लस पाई बाई 2, देन दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज cos sec इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 1 अपॉन x और sin इनवर्स x इक्वल्स टू cos sec इनवर्स 1 अपॉन x, sec इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 अपॉन x और cos इनवर्स x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो पूरा फंक्शन ही अपॉन में चला जाता था, जैसे cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा अपॉन में आता था, बट यहाँ cosec इनवर्स x में sin इनवर्स अपॉन में नहीं आएगा, sin इनवर्स न्यूमरेटर में रहेगा, ओनली x है वो अपना इंटरचेंज हो जाएगा, x एज ए x अपॉन 1, तो देन इट कन्वर्ट इनटू द 1 अपॉन x, मींस जो उसका डोमेन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, sin इनवर्स अपॉन में नहीं आएगा, ये रेसिप्रोकल नहीं होगा। cosec इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 1 अपॉन x या sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स cosec इनवर्स में चेंज होगा, x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x हो जाएगा। लास्ट cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन x और tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 अपॉन x, मींस जो डोमेन है उस डोमेन को इंटरचेंज करना है। जैसे मैं बोलूं sin इनवर्स 3 अपॉन 4 किसके इक्वल होगा, cosec इनवर्स 4 अपॉन 3, दिस इज द x, दिस इज द 1 अपॉन x। ओके, sin इनवर्स 3 अपॉन 4, cosec इनवर्स 4 अपॉन 3 एंड द cosec इनवर्स 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू sin इनवर्स 4 अपॉन 3। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड द प्रॉपर्टी नंबर 4 इज sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x equals to pi by 2, tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x equals to pi by 2, sec इनवर्स x plus cosec इनवर्स x equals to pi by 2। This is the property number 4। Okay, sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x का सम pi by 2 के इक्वल होगा, बट कंडीशन दोनों जगह x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, एंड tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x equals to pi by 2 एंड sec इनवर्स x plus cosec इनवर्स x equals to pi by 2। इसको एक्सप्लेन करना है, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करके बताता हूं। sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x equals to pi by 2, let sin इनवर्स x equals to theta then sin इनवर्स x को मैंने थीटा चुन के, let sin इनवर्स x equals to theta then x equals to sin थीटा। sin थीटा को मैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, pi by 2 है, तो then cos convert into the sin and pi by 2 minus theta lies in the first quadrant and in the first quadrant all trigonometric ratios are positive, so sin theta can be write as a cos pi by 2 minus theta। cos का मैं फिर ट्रांसपोज करूँ, cos इनवर्स x equals to cos का को इधर इधर इनवर्स में चेंज हो जाएगा, cos इनवर्स x equals to pi by 2 minus theta, and the value of theta is sin इनवर्स x।
माइनस साइन इनवर्स एक्स का ट्रांसपोज किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ओके, तो इस तरह हम इन सभी प्रॉपर्टीज को, इन सभी को हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, देन नोट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हिच आर यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से समझना है और लर्न रखना है। ओके, नोट इट।